Good evening and welcome everyone to this live session on emergency under Indian polity course. So yesterday we had talked about national emergency. I told you that there are two types of national emergencies under Article 352. I had told you that there are two types of national emergencies under Article 352, 358 and 359. Okay, 358 suspends which article? Proclamation of emergency under Article 358. Proclamation of emergency under Article 358 suspends Article 19 automatically. Right? And proclamation of emergency under Article 359 requires the president to issue a notification which tells us that which all fundamental rights have been suspended. ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हैं दोनों. हमने ये समझा कि इम्पैक्ट ऑफ एमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इफेक्ट ऑफ एमरजेंसी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, एंड व्हाट वुड बी द रोल ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज. व्हाट आर ऑल इंडिया सर्विसेज? IAS, IPS एंड IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. ओके, दीज आर दी ओनली 3 सर्विसेज. तो इनका क्या रोल रहता है? देयर रोल गेट्स एम्पलीफाइड ड्यूरिंग दी emergency. ये चीज हमने डिस्कस करी थी. 42nd Amendment Act of 1976 provided that the two consequences mentioned above extend not only to a state where emergency is in operation but also to any other state, right? While a proclamation of national emergency is in operation, President can modify the constitutional distribution of revenues between the center and the states. ये हमने समझ लिया था सारा कुछ. How many of you attended the geography class? Is it over? Is the geography class over, guys? Everyone? Or is it still going on? Just 1 minute. Okay, it's still going on, it seems. Anyways, let's continue with our lecture. I cannot see the requisite amount of strength, number of students. So that's why I was a bit concerned about it. Okay. Anyways, not an issue. So, I'm just doing a quick recap of the things that we had covered yesterday. While a proclamation of national emergency is in operation, the life of Lok Sabha may be extended beyond its normal term, 5 years, by a law, not by a resolution of the parliament for 1 year at a time. However, this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has ceased to operate. ये मैंने बताया था. Historical precedent, the term of 5th Lok Sabha was extended 2 times by 1 year at a time. Clear? Parliament may extend the normal tenure of a state legislative assembly by 1 year each time for any length of time. This is also subject to maximum period of 6 months after emergency has ceased to operate. Now, effect of national emergency on fundamental rights. Articles 358 and 359 describe the effect of a national emergency on fundamental rights. Article 358 deals with suspension of fundamental rights guaranteed by Article 19. Article 359 deals with suspension of other fundamental rights. This is what I had told you, right? So, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी. No separate presidential order for their suspension is required.
While a proclamation of national emergency is in operation, the state is freed from the restriction imposed by Article 19. Okay, so these things are there. थोड़ा सा हमने recap कर लिया. अब curtailment of judicial power. Any such law or executive action cannot be challenged in the judiciary on the ground that they are inconsistent with 6 fundamental rights. ठीक है, तो हमने ये भी कवर कर लिया था कि आर्टिकल 358 पे 44th अमेंडमेंट एक्ट का क्या इम्पैक्ट हुआ है. तुम लोगों ने रिवाइज किया था बच्चों इसे? डिड यू गाइज रिवाइज इट? रिविजन इज द की हियर because these are all factual. So today we had the first class on social issues also. How was the class for you guys? The social issues class? Impact of 44th Constitutional Amendment Act. There were two changes. Firstly, the ओके सो फर्स्ट तुम लोग रेटिंग देना शुरू कर दो. नीचे थम्स अप वोट. लव वाला ऑप्शन भी दे रखा है उधर, ठीक है? सारे ऑप्शन दे रखे हैं. सरप्राइज वाला, एंग्री वाला, सैड वाला भी दे रखा है. ब्रेकअप वाला नहीं दे रखा. तो ये तुम्हारे लिए दे रखे हैं नीचे. समझ में आया? फनी भी दे रखा है. तो this PPT will also be shared soon. Secondly, only those laws which are related with emergency are protected from being challenged. ठीक है? And not other laws. As a logical corollary, the executive action taken only under such a law is protected. We'll share this PPT. Give me just 1 minute. आज की क्लास में थोड़ी छोटी रखूँगा guys. I could not take proper sleep since last 2-3 days, as I told you in the evening class also. Let me just share this PPT with you. जितने में और बालक आ जाएंगे, right? Okay, Saket, very nice. I have to enter the code of Telegram in order for me to log in. Just 1 minute. ठीक है, मैं इसको शेयर कर देता हूँ. अभी ये थोड़ा नेटवर्क इशू है. Yes. I'm sharing the PPT for now. Okay, that will help you in other ways also. Okay, I've shared the PPT. You can use it to your advantage, especially Praveen. आप पीपीटी के लिए रिक्वेस्ट करते रहते हो ना, तो इट विल बी हेल्पफुल. इंडियन पॉलिटी. Okay, so now coming here, secondly, only those laws which are related with the emergency are protected from being challenged. ये हमने कल कवर कर लिया था. Have you all got the PPT now? Okay, suspension of other fundamental rights हमने ये भी देखा था. Effects of national emergency on fundamental rights. The said rights are theoretically alive, but the right to seek remedy under Article 32 and 226 is suspended. Right. Further, the suspension could be for the period during the operation of emergency or for a shorter period as mentioned in the order. And the suspension order may extend to the whole or any part of the country. Parliamentary check, it should be laid before each house of the parliament for approval.
While a presidential order is in force, the state can make any law or can take any executive action abridging or taking away specified fundamental rights. Any such law or executive action cannot be challenged on the ground that they are inconsistent with the specified fundamental rights. When the order ceases to operate, any law so made, to the extent of such inconsistency with the specified fundamental right, ceases to have the effect. So this is there, but no remedy lies for anything done during the operation of the order even after the order ceases to operate. No remedy lies. ठीक है, कोई ऐसी कोई अब जो डैमेज हो गई फंडामेंटल राइट्स की ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द इमरजेंसी वाज इन फोर्स, उसका कोई हल नहीं है. This means that legislative and executive actions taken during the operation of the order cannot be challenged even after the order expires. So these things are there. 44th Amendment Act of 1978 restricted the scope of Article 359 in two ways. Firstly, the President cannot suspend the right to move the court for the enforcement of fundamental rights. ठीक है, तो President cannot suspend the right to move the courts. This protection was added. Done. And in other words, the right to protection in respect of conviction for offences and the right to life and personal liberty remain enforceable even during emergency. Secondly, only those laws which are related with the emergency are protected from being challenged and not other laws. And executive action taken only under such a law is protected. Only those laws which are related with the emergency are protected from being challenged and not the other laws. Clear? So this is there. Article 358, मैंने आपको बोला था ये आप खुद पढ़ोगे, difference between Article 358 and 359. Article 358 is confined to fundamental rights under Article 19 only. शुरू करें अब इसको. Article 359 extends to all those fundamental rights whose enforcement is suspended by the presidential order except Article 20 and 21. Clear? So this is there. Now Article 358 automatically suspends the fundamental rights under Article 19 as soon as the emergency is declared. Article 359 does not automatically suspend any fundamental right. देखो, it may as well happen, ऐसा भी हो सकता है, it may as well happen that president invokes emergency under Article 359 and does not, and he decides and the government decides not to suspend any of the fundamental rights. ओके, ये भी हो सकता है कि इमरजेंसी लगा दी बट फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के पास, और बाद में सरकार ये बोलती है कि अगर हालात बिगड़ेंगे तो हम फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर सकते हैं. It is necessary, I mean it could be a possibility under Article 359 that emergency is there but without suspension of fundamental rights. So this will be like emergency with fundamental rights is a possibility under Article 359. Got it? Clear है सबको? Then coming here, distinction between Article 358 and 359. Article 358 operates only in case of external emergency. Article 358 operates only in case of external emergency. That is when the emergency is declared on the grounds of war or external aggression, and not in case of internal emergency. That is when emergency is declared on the grounds of armed rebellion. ठीक है? Only in case of Article 358 operates only in case of external emergency. That is when emergency is declared on the grounds of war and external aggression. Article 359 on the other hand operates in case of both external emergency as well as internal emergency. So the scope of, can we say that the scope of Article 359 is wider? Can we conclude that the scope of Article 359 is wider than the scope of Article 358? बोलो.
Can we say that the scope of Article 358 is wider? No. Scope of Article 359 is wider, right? Article 358 suspends the fundamental rights under Article 19 for the entire duration of the emergency. Just 1 minute. So, Article 359 suspends the enforcement of fundamental rights for a period specified by the President, which may either be the entire duration of the emergency or a shorter period. So, this is there. Now, coming here to the other aspects, Article 358 extends to the entire country. Article 359 may extend to the entire country or a part of it. Clear hai? Clear to everyone? So this is there. Now, Article 358 suspends Article 19 completely. आर्टिकल 358 19 को completely. अब 19 में options नहीं है कि 19 clause 1 sub clause A would be suspended and 19 clause 1 sub clause B would not be suspended. Article 359 does not empower the suspension of enforcement of Article 20 and 21. Article 358 enables the state to make any law or take any executive action inconsistent with the fundamental rights. ठीक है, under Article 19 alone. 358 only 19. Article 359 enables the state to make any law or take any executive action inconsistent with those fundamental rights whose enforcement is suspended by the presidential order. Article 359 enables the state to make any law or take any executive action. So these things are there. Now Article 358 suspends fundamental rights. ये सारा क्लियर हो गया सबको. तो हमने सिर्फ अभी एक टेबल स्टडी किया है जो लोग लेट से आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी क्लास. सो ये टेबल आपको थोड़ा सा पढ़ना है. मैंने अच्छे से बताया अभी. इट्स बीन जस्ट 5-10 minutes. Now we are going to start with President's Rule, Article 356. President's Rule, Article 356 is something we are going to start with. President's Rule, grounds for imposition क्या है? Article 355. Very interesting articles these are. Why these are interesting? Because सेंटर के ऊपर एक ड्यूटी है to ensure that it's a duty. Article 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the Constitution. Duty of the Union to protect the state against external aggression and internal disturbance. It shall be the duty of Union to protect every state against external aggression and internal disturbance, and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the Constitution. No, Article 359 is wider in scope than Article 358. This is what I said before. Why? Because Article 358 में सिर्फ 19 ही suspend होता है. ठीक है, Article 358 में सिर्फ 19, whereas in Article 359 you can suspend many other fundamental rights. है ना? Many other fundamental rights except Article 20 and 21. बाकी के सारे. Where is Saket? It shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance. Then coming here,
Explanation: it is this duty in the performance of which the center takes over the government of a state under Article 356 in case of failure of constitutional machinery in the state. Good evening, everyone. So we've just started with the president's rule. Thank you, and I'm sorry that you have to go through all this. Thank you for accommodating, and sorry for this overlap between the classes, overlap of around half an hour. President's rule, Article 356. ओके साकेत, आप हो यहाँ पे, आप रहते हो तो थोड़ा उजाला रहता है. नाउ द कमेंट सेक्शन सीम्स टू बी it seems to be a happening place when this guy is here, right? कुछ ना कुछ लिखते रहा करो साकेत, बिहार से हो पता तो लगे, राइट? बातें करते हैं ना बिहार के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से, तो बातें करते रहा करो. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट. 20 मिनट्स में रिवाइज करवाया सिर्फ, ठीक है? प्रेसिडेंट्स रूल जो है आपको देखना है. नाउ इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन. किसकी ड्यूटी है? यूनियन की. यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि स्टेट में एक तो स्टेट को एक्सटर्नल अग्रेशन से बचाना है, एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर किसी स्टेट में होता है तो उससे भी बचाना, ठीक है? उससे भी बचाना. ये किसकी ड्यूटी है? केंद्र सरकार की. It is the duty of the center to ensure that government of every state is carried on in accordance with provisions of the constitution. Clear? 355. अब आगे चलते हैं. तो सेंटर टेक्स ओवर. इट इज इन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूटी. अगर सेंटर को लगता है कि 355 के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वे में नहीं चलाई जा रही, तो इट इज दिस ड्यूटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ विच, जिसको पूरा करते हुए, जिसका निवारण करते हुए, सेंटर टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 356 इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट. दिस इज पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल. This is popularly known as President's Rule. It is also known as State Emergency or Constitutional Emergency. President's Rule can be proclaimed under Article 356 on two grounds. Number 1, breakdown of constitutional machinery under Article 356. Number 2, 365. ठीक है? President's Rule कब कब लगाया जा सकता है? दो ऑप्शंस हैं 356 में, दो ग्राउंड्स हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि अगर चीफ मिनिस्टर और बाकी के मंत्रिमंडल या मिनिस्ट्री जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम कर रही हो. जैसे पंजाब में ड्रग रैकेट चल रहा था, राइट? उसमें मिनिस्टर्स का नाम उछल के आ रहा था. या तो तब, ठीक है, या तो ऐसे सिनेरियो में जब कॉन्स्टिट्यूशनल वे में सरकार चलाना पॉसिबल ना हो, या फिर जब गवर्नर ने चारों ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका देके देख लिया, सरकार नहीं बन पा रही है. व्हेन देयर इज अ हंग लेजिस्लेटिव असेंबली. समझ में आया? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इज नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट और बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज भी सरकार नहीं बना पा रही, तब गवर्नर के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो प्रेसिडेंट्स रूल रिकमेंड करें प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट रूल लगने का मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बिकम द इंचार्ज. इट बिकम्स द इंचार्ज. Article 365, failure to give effect to directions given by the union. Failure to give effect to the directions given by the union government. 365 says that whenever a state fails to comply with or to give effect to any directions from the center, it will be lawful for the president to hold that. जब कभी state fails to comply with or to give effect to any direction, 365 में स्टेट के पास में ये राइट है कि अगर स्टेट कोई डायरेक्शन देगी, अगर स्टेट कोई सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया है स्टेट को, जैसे कि नेशनल इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, हैवी ड्यूटी पावर लाइंस होती हैं ना, वो बिजली की तारें, उनको मेंटेन करना, या इंटर स्टेट कैनाल के पानी के फ्लो को मेंटेन करना. अब अगर हरियाणा सरकार को, हरियाणा गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि प्लीज़ मेक श्योर दैट द पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग फॉर रिजर्वेशन डू नॉट हार्म द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली. अब अगर ऐसा कुछ डैमेज हो जाता है, हरियाणा सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती. हरियाणा सरकार ये कहती है कि वी आर नॉट गोइंग टू डिप्लॉय हरियाणा पुलिस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द डैम. सेंटर शुड डिसाइड ऑन इट्स ओन. या फिर रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट्स का फेलियर माना जाना तय है. ऐसी सिचुएशंस में सेंटर ये एज्यूम कर सकता है दैट अ सिचुएशन हैज़ कम वेयर इन
that a situation has arrived wherein it is impossible for the governance of the state to be carried on in accordance with the constitution. पहला ये है कि पहला जो ऑप्शन है, ग्राउंड है जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है, वो तो ये है ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. दूसरा वाला मैंने अभी जस्ट समझाया. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यूनिक केस, ये डी बसु से मैंने ये लाइन ली थी, अगर केयरफुली पढ़ोगे तो. वैसे अब आपको ज़रूरत नहीं है. कैन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो बहुत एनालिटिकल सा क्वेश्चन है, मेरी बात सुनना, उसको भूल जाओ, तुम पीछे देखो पहले, मेरी बात सुनना इधर. क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट ने अगर किसी स्टेट को ये दिशा निर्देश दिए गए कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट के लिए, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अचीवमेंट के लिए कुछ ऐसा करो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आयुष्मान भारत को इम्प्लीमेंट करो. ठीक है, आयुष्मान भारत को इम्प्लीमेंट करो. अब अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती तो क्या ये माना जा सकता है कि ये डायरेक्शन दी गई और इस डायरेक्शन को पूरा ना करने की वजह से एमरजेंसी लगा दी जाए अंडर आर्टिकल 356? ठीक है, और ये कहते हुए कि ये तो डीपीएसपीज में दे रखा है, डीपीएसपीज में दे रखा है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, दे रखा है ना. हेल्थ ना प्रमोट करने के चलते क्या स्टेट गवर्नमेंट पे ये एलिगेशन लगाते हुए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंटर की डायरेक्शंस को, उन डायरेक्शंस को जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, सेंटर की डायरेक्शंस को स्टेट इंप्लीमेंट नहीं कर रही स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया. इज इट पॉसिबल? समझ में आया? नो. ठीक है, बिकॉज ऐसे टाइम पे तो फिर वही सही है ना कि ऐसे टाइम पे क्या सही है. जस्ट 1 मिनट, दिस इज गॉट डिस्टॉर्टेड. वी वर एट स्लाइड नंबर 30. ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या काम आता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ऐसे टाइम पे अगर ऐसा आप करोगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ना इम्प्लीमेंट करने के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इतने बड़े चार्जेस लगा देगी कि 356 लगा दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा? कोएर्सिव फेडरलिज्म. COERCIVE, पुलिस वाला फेडरलिज्म. हमें चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. इसीलिए आमतौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट पॉजिटिव एक्शंस ना लेने की सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आर्टिकल 356 यानी कि प्रेसिडेंट रूल नहीं इन्वोक करती, नहीं लगाती. गॉट इट? हाँ, ऐसी सिचुएशन में ये किया जाता है कि आर्टिकल 356 कब लगाया जाता है? जब कोई स्टेट गवर्नमेंट ग्रॉसली अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही हो, जैसे कि किसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा देना, किसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को जो है उसको एम्पलीफाई करना. ठीक है, कि उसको बढ़ावा देना, जल्दी में घी डालने का काम करना. जैसे कि कोई नशीले पदार्थ या ड्रग रैकेट चल रहा है तो उसमें स्टेट के मंत्री मिले हुए हों, या कुछ ऐसा कि दंगे करवाए जा रहे हों जानबूझ के, राइट? ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 356 प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, इफ द प्रेसिडेंट ऑन द रिसीट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज, if the president is satisfied that a situation has come in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of this constitution. Takeaway: president can impose state emergency even without governor's report. Governor's report is required every 3 months. Okay, governor is required to submit a report on the state of affairs in the state jurisdiction कि क्या चल रहा है राज्य में. Article 365, effect of failure to comply with or to give effect to the directions given by the union. Where any state has failed to comply with or to give effect to any directions given in the exercise of the executive power of the union, under any directions given in the exercise of the executive power of the union, under any of the provisions of this constitution, it shall be lawful for the president then to assume that a situation has come in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of this constitution. Now, is it clear to everyone?
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए गए दिशा निर्देश को, डायरेक्टिव को स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करती, सक्षम नहीं होती, तो प्रेसिडेंट ये मान सकते हैं रीजनेबली कि हाँ स्टेट में ऐसे हालात हो गए हैं कि स्टेट संवैधानिक तरीके से नहीं चलाई जा सकती. ठीक है. जो डायरेक्शन दी जा रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होनी चाहिए. राइट. अब ऐसा नहीं है कि सीबीआई को जानबूझ के लगा दिया, सेंटर ने बोला कि सीबीआई को इंक्वायरी करने दो, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा, बिकॉज दिस इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. इफ द सेंटर डायरेक्ट्स द स्टेट to let the CBI inquire a particular scam, if the state government says no, then state government is well within its rights to refuse the central BI, Central Bureau of Investigation, to not to take up investigation. ऐसी सिचुएशन में 365 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कोई भी डायरेक्शन जो सेंटर दे रहा है वो प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये अनुमति नहीं देती कि सेंट्रल द्वारा बनाया गया, सेंटर के द्वारा क्रिएट की गई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऐसा कुछ करे. क्लियर. पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन. Parliamentary approval within 2 months. A proclamation imposing President's rule must be approved by both the houses of the Parliament within 2 months from the date of its issue. However, if the proclamation of President's rule is issued at a time, ये हमने देख लिया था पहले, लेकिन यहाँ पे देखो नेशनल इमरजेंसी के केस में 1 month है, यहाँ पे इट्स 2 months. ठीक है. पार्लियामेंट, अब क्या स्टेट इमरजेंसी जो लगाई गई है क्या उसका पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होना ज़रूरी है? यस. ठीक है. पार्लियामेंट शुड अप्रूव इट. ठीक है. विदिन 2 months from the date of its issue. However, if the proclamation of President's rule is issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved, or the dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of 2 months without approving the proclamation, then the proclamation survives until 30 days. This is the same as in case of national emergency. So do I need to repeat this? अब यहाँ पे देख लो, अगर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने स्टेट में लगाई गई इमरजेंसी को यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल को अंडर आर्टिकल 356 को अप्रूव कर दिया तो ये कितना टाइम चलेगी? 6 महीने. ठीक है. इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 months. व्हाट वाज द मैक्सिमम पीरियड इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी? आई आस्क यू अ क्वेश्चन. What was the maximum period in case of national emergency for which the national emergency could continue? Please answer. Ajit? अजीत, पानी दे दो. Ifti is very much annoyed with the new teacher. Yes, Prahlad, I could barely sleep for 3 hours last night because of this work, and a lot of things are going on. You would get to know very soon. Okay, anyways, let's continue for some more time. 12 months. शर्म करो, शर्म करो. 12 डूब मरो तुम लोग. कल चिल्ला चिल्ला के समझाया. तुम लोग क्या करते हो यार? मतलब कल बताया था ना कि बार बार 1 साल के लिए अप्रूव करी जाए तो कोई लिमिट नहीं है. बताया था कि नहीं बताया था? Don't worry, we are coming up with an Hindi, with a Hindi lady teacher as well. Okay,
सो गाइस आदत हो गई है अभी, पर ये 4-5 घंटे की नींद कभी आज 3 हो गई है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। हाँ बोला था ना, फिर गालियाँ सुनते तुम लोग, मैं क्या करूँ तुम्हारा बताओ। ठीक है तुम ना पढ़ो, मेरा क्या जाएगा। गुस्सा करना मेरा हक है, ठीक है, तुमने फीस दे के खरीद नहीं रखा मेरी मेहनत को। तो सीधी सीधी सी बात है, तुम लोग गड़बड़ करते हो। कल चिल्ला चिल्ला के बोला था कि नहीं बोला था, फिर रिवाइज करना किसका। साकेत आप तो कल थे नहीं वैसे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, देखो आप जब क्रिटिसाइज करोगे कि स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है, कि स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, लेकिन आपको ये फेवरेबल पॉइंट याद रखना है। नेशनल इमरजेंसी में इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन फेडरलिज्म को रिस्टोर करना इसमें दे रखा है, ठीक है। फेडरलिज्म को रिस्टोर करने का ये दे रखा है प्रावधान। क्या प्रोविजन दे रखा है फेडरलिज्म को रिस्टोर करने का? कि जल्द से जल्द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन करवाए जाएं और स्टेट की सरकार को बहाल किया जाए, रिस्टोर किया जाए, ठीक है। री इंस्टेटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज नेसेसरी, राइट। So this is there. Now coming here, Saket. However, if the dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of 6 months, ये सेम है जैसा हमने कल पढ़ा था, ठीक है। पढ़ो एक बार, खुद पढ़ो तभी तुम्हें थोड़ा याद होगा। पढ़ो, शाबाश। जब ये प्रीलिम्स नज़दीक आ जाएगा ना, तो मैं ऐसी मैराथन क्लासेस लूँगा तुम्हें डांटने फटकारने वाली, आर्टिकल और ये सब प्रोविजंस वाली, ठीक है। तो ये मत करना कि ट्रेन चली गई प्लेटफॉर्म छोड़ के चले गए तुम लोग, है ना। बी विजिलेंट अबाउट द अपडेट्स एंड SMS दैट यू रिसीव फ्रॉम JV's प्लेटफॉर्म ऑन योर मोबाइल फ़ोन, तो तब मज़ा आएगा तुम्हें। Every resolution approving the proclamation of President's rule or its continuation can be passed by either House of Parliament only by a simple majority. तो 356 के अंडर सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। 352 के अंडर जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है उसमें क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, ये याद रखना है। इसमें सिंपल मेजॉरिटी से ही काम चल जाता है। नाउ 44th अमेंडमेंट एक्ट ने स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस को चेंज किया। क्या थे वो प्रोविजंस? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोविजन टू पुट रिस्ट्रेंट ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू एक्सटेंड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बियॉन्ड 1 ईयर, ठीक है। क्या रिस्ट्रेंट था? अगर 1 साल से ज़्यादा स्टेट में इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है, 356 के अंडर प्रेसिडेंट्स रूल को एक्सटेंड करना है, तो प्रेसिडेंट्स रूल बियॉन्ड 1 ईयर, अगर 1 साल हो गया, 6 महीने में एक बार 6 महीने, फिर एक और 6 महीने, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल अगर एक्सटेंड होगा बाय अनदर 6 मंथ्स ओनली व्हेन द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। पहली दफ़ा 6 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई, प्लस फिर और 6 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई, ठीक है। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन द होल ऑफ इंडिया और इन होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, and election commission must certify that general elections to the legislative assembly of the concerned state cannot be held on the account of difficulties, ठीक है। या तो पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो और उस पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगी हो, ऐसा भी हो सकता है। कब होगा ऐसा? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से स्टेट में काम ना चल रहा हो, यानी कि स्टेट में या तो सरकार बनाना नामुमकिन हो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट, और the state has failed to comply with the directions given by the center under article 365, ठीक है। तो इलेक्शन, और साथ में एंड दे रखा है यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन को ये सर्टिफाई करना होगा कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के चलते या किसी और प्रॉब्लम के चलते स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस करवाना नियर इम्पॉसिबल है। दोनों में से अगर एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई तो इमरजेंसी स्टेट में 1 साल के बियॉन्ड कंटिन्यू नहीं करी जा सकती, ठीक है। 1 साल के बाद अगर कंटिन्यू करनी है तो हर बार, ये 1 साल तो हो गया 6+6 वाला पहला 1 साल, इस पहले 1 साल के बाद अगर कंटिन्यू करनी है इमरजेंसी तो हर बार इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा और नेशनल इमरजेंसी होनी ज़रूरी है, याद रख लेना इसे, ठीक है। नाउ प्रेसिडेंट एक्वायर्स इफेक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल। देखो यहाँ पे इफेक्ट क्या है थोड़ा बता देता हूँ तुम्हें, ये 2-3 चीज़ें हैं इसमें।
के बाद ये थोड़ा ख़त्म हो जाएगा. Now, coming here, effect of the president's rule. President acquires the following extraordinary powers when the president's rule is imposed in a state. He can take up the functions of the state government and the powers vested in the governor or any other executive authority in the state. He can take up the functions of the state government and the powers. He can declare that the powers of the state legislature are to be exercised by the parliament. He can declare that powers of state legislature are to be exercised by the parliament. He can take all other necessary steps, including the suspension of constitutional provisions relating to anybody authorized anybody or authority in the state. तो president can take up the functions of the state government. ठीक है, लेकिन state government को suspend नहीं किया जाता. अगर वो state के functions अपने हाथ में ले लें तो state government suspend हो गई. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को नेशनल इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं किया जाता. स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं सेंटर के द्वारा नेशनल इमरजेंसी में. ठीक है, लेकिन जब प्रेसिडेंट्स रूल होता है तो स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है. हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जाए. जब कभी 356 के अंडर स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कुड बी डिसॉल्व्ड. गवर्नर ये नहीं कर सकते. ठीक है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये कुछ सेफगार्ड्स ऐसे इंसर्ट करे हैं. पहले क्या होता था कि स्टेट जैसे ही कोई कांग्रेस किसी स्टेट में हारती थी 1967 में, काफ़ी स्टेट्स में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा. कांग्रेस हैड लॉस्ट इलेक्शंस इन सो मैनी स्टेट्स. तो कांग्रेस जब दोबारा इलेक्शन जीत के आई, इन्होंने सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया. बोला कि री इलेक्शन होंगे. कोर्ट में चैलेंज हुआ. कोर्ट ने पूछा क्यों भाई, क्यों किया है. सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि प्रेसिडेंट रूल क्यों लगाया है. इन्होंने बोला कि आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एट द सेंटर, यानी कि विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ राज्यों में, स्टेट्स में पावर में हैं उनसे नहीं मिलती. इसलिए आइडियोलॉजी ना मिलने की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी. हमने इनको डिसॉल्व कर दिया. ठीक है, इसीलिए ये सेफगार्ड इसमें लाए गए. तो देखो, ही कैन टेक ऑल अदर नेसेसरी स्टेप्स इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनीबडी इंक्लूडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर और अथॉरिटी. देयरफॉर व्हेन द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट, प्रेसिडेंट डिसमिसेस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. डिसमिस हो जाती है वो. स्टेट गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. देखो, सस्पेंशन और डिसमिसल में क्या फ़र्क होता है. सस्पेंशन का मतलब होता है हाल फिलहाल के लिए आप काम नहीं करोगे, छुट्टी पे चले जाओ. डिसमिसल होता है कि वो दोबारा वापस आ ही नहीं सकते. उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने गए चीफ मिनिस्टर दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व कर दिया तो. ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट रूल में स्टेट गवर्नर क्या करते हैं, स्टेट गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे स्टेट प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट or advisors appointed by the president. This is the reason why a proclamation under Article 356 is popularly known as President's Rule in a State. ठीक है, समझ में आ गया सस्पेंशन और डिसोल्यूशन का मतलब. अभी आगे और क्लैरिटी हो जाएगी. फर्दर, प्रेसिडेंट ईदर सस्पेंड्स और डिसॉल्व्स द लेजिस्लेटिव असेंबली. प्रेसिडेंट ईदर सस्पेंड मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई बिल पास ही नहीं होगा. बिल वगैरह कौन पास करेगा, पार्लियामेंट पास करेगी. ठीक है, स्टेट इमरजेंसी जब लगी हो तो स्टेट के बिल कौन पास करेगा, पार्लियामेंट. इन नटशेल, when the state legislature is suspended or dissolved, parliament can delegate the power to make laws for the state to the president. पार्लियामेंट ऐसा भी कर सकती है कि प्रेसिडेंट को ये बोल दिया कि आप लैंड एक्विजिशन के लिए कोई भी रूल बना दो, स्टेट में लैंड एक्विजिशन के लिए.
और किसी और अथॉरिटी को भी ये एडमिनिस्ट्रेटर को या किसी और चीफ सेक्रेटरी को ये पावर्स दी जा सकती हैं. पार्लियामेंट या फिर अगर पार्लियामेंट ने ये पावर किसी और को डेलीगेट कर दी है तो प्रेसिडेंट और एनी अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी कैन मेक लॉज conferring powers and imposing duties on the center or its officers. ठीक है, पार्लियामेंट या फिर पार्लियामेंट ने अगर ये पावर डेलीगेट कर दी है तो प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट की जगह किसी और को डेलीगेट करी है तो वो अथॉरिटी लॉ बना सकती है पावर या ड्यूटीज़ देते हुए, सेंटर को ड्यूटी देते हुए या सेंटर को पावर देते हुए कि आप स्टेट का कामकाज संभालिए. ठीक है. President can authorize when the Lok Sabha is not in session expenditure from the state. देखो, स्टेट के खजाने में से पैसे निकालने का काम यदि लोकसभा सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से भी स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकाले जा सकते हैं. मनी कुड बी विड्रॉन पेंडिंग. जब कभी लोकसभा दोबारा से रिकन्वीन होगी, दोबारा से मिलेगी, लोकसभा का सेशन स्टार्ट होगा तो दोबारा से पार्लियामेंट को उसको अप्रूव करना पड़ेगा. लेकिन वन टाइम, ये वन टाइम बोल रहा हूँ, मतलब विदाउट कॉन्सेंट, without the approval of parliament also, president can withdraw the money from the consolidated fund of India only in case of state emergency. ठीक है. और क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट? अब जब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व ही हो गई या फिर सस्पेंड कर दी गई, देखो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो डिसमिस ही कर दी जाती है इमरजेंसी के दौरान. ठीक है. जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इमरजेंसी के दौरान उसे क्या किया जाता है? या तो सस्पेंड किया जाता है या डिसॉल्व. सस्पेंड और डिसॉल्व दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं प्रेसिडेंट के पास. अब या तो वो सस्पेंड है या डिसॉल्व है तो प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए बिल पास करना है तो बिल की जगह ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह वो बाकी के टाइम में ऑर्डिनेंस इशू करते हैं. क्लियर? A law made by the parliament or the president or any other authority continues to be operative even after the president's rule. लॉ बनाया था पार्लियामेंट ने, प्रेसिडेंट रूल ख़त्म हो गया, फिर भी वो लॉ चलता रहेगा. अब मेरे को तुम ये बताओ, जो लोग सो रहे हो या जाग रहे हो, अगर कोई लॉ पार्लियामेंट ने बनाया था नेशनल इमरजेंसी के दौरान तो वो कब तक कॉन्टिन्यूड रहता है? बताओ. दैट लॉ कुड कंटिन्यू टिल a law made by the parliament or the president or any other specified authority continues to be operative even after the president's rule. This means that the period for which such a law remains in force is not coterminous with the duration of the proclamation. स्वाति, it is 6 months. ठीक है. और फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या बताया था? यस मनोरंजन, वेरी नाइस. स्वाति, यू आर ऑल्सो राइट. 6, फिर उसके बाद 6 है ना, 6 मंथ 6 वीक. 6 मंथ 6 वीक वो तो ऑर्डिनेंस के लिए है विवेक. 6 वीक्स वाला यहाँ पे नहीं है बच्चे. इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, मैंने आपको ये बताया था. यहाँ पे पता क्या है, जब तक स्टेट लेजिस्लेचर उसे जो रिपील नहीं कर देती, डिलीट नहीं कर देती उस लॉ को, जो प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट ने बनाया था. जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या चल रहा था, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया स्टेट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट पे, और जब कब बनाया, जब 356 लागू था, स्टेट इमरजेंसी चल रही थी, तो ये लॉ एवरग्रीन है until and unless it is repealed by the state legislative assembly after emergency is gone, after state emergency is lifted. Yes, end of the financial year. Very nice, Pooja. President cannot assume to himself the powers vested in the concerned state high court or suspend the provisions of this constitution relating to it. Clear? National emergency versus president's rule, ये खुद पढ़ोगे टेबल.
ये जो चीज़ें अभी मैं पूछ रहा हूँ ना वही क्वेश्चंस हैं उसमें। अब आगे चलो, ये इसको यही सारे क्वेश्चन जो हैं कंपैरिजन है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, पढ़ देता हूँ, फिर तुम बोलोगे अनपढ़ रह गए हम पॉलिटी में। रुक जाओ, पढ़ता हूँ तब तो तुम्हें याद नहीं रहता, बिना पढ़े तुम क्या ही पढ़ोगे, जानबूझ के तुम काम चोरी करते हो। इट कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटेंड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबिलियन। इट कैन बी प्रोक्लेम्ड व्हेन देर आर टू ग्राउंड्स। कौन से टू ग्राउंड्स? जो मैंने अभी बताए थे। नाउ ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कॉन्टिन्यूज टू फंक्शन। नेशनल इमरजेंसी में स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों चलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्शंस पे, किसकी डायरेक्शंस पे? यूनियन गवर्नमेंट की। स्टेट इमरजेंसी के दौरान स्टेट एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इज ईदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड, राइट? नाउ अंडर दिस parliament can make laws on the subjects enumerated in the state list only by itself. Parliament can make laws, that is it cannot delegate the same to any other body. जैसे हमने पहले देखा ना, पार्लियामेंट ये चीफ सेक्रेटरी को पावर्स दे सकती है या गवर्नर को दे सकती है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में नहीं दे सकती। Under this, Parliament can delegate the power to make laws for the state to the President or to any other authority specified by the President. ठीक है, ये चीज़ हो गई। देर इज़ नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट्स ऑपरेशन। नेशनल इमरजेंसी के लिए कोई नहीं है यहाँ पे, 3 साल है ना। देयर आफ्टर इट मस्ट कम टू एन एंड एंड द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मस्ट बी रिस्टोर्ड इन द स्टेट। Under this, the relationship of the center with all the states undergoes a modification. Under this, the relationship of only the state under emergency with the center undergoes a modification. Every resolution of parliament approving its proclamation or continuance must be passed by special majority. यहाँ पे simple majority. It affects the fundamental rights of the citizens. It has no effect on the fundamental rights. Very very important point है ना। लोकसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर इट्स रेवोकेशन। अगर इमरजेंसी एक बार लगा दी गई तो लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी जिससे नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। देयर इज नो सच प्रोविजन। इट कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन हिज ओन। प्रेसिडेंट ये बोलेंगे कि अब स्टेट जो है, स्टेट ए या बी, अब जो है प्रेसिडेंट रूल के अंडर नहीं है। आदित्य, आपने कल की क्लास अटेंड करी थी? कल की क्लास में गाइज, अभी इसको मैं वाइंड अप करूँगा, मैं तो पढ़ाते पढ़ाते आज सो जाऊँगा, राइट? तो कोशिश करूँगा कि कल एक बार टेलीग्राम पे मैं आई पोस्ट अ मैसेज कि कल एक क्लास और रहेगी। अभी इसको ये देख लेते हैं फटाफट से। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 मेड द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इन्वोकिंग आर्टिकल 356 फाइनल। प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन फाइनल है। 38th अमेंडमेंट एक्ट यानी कि जो इमरजेंसी के दौरान लाया गया, उसने इसे फाइनल कर दिया था। ठीक है, ओके आदित्य, मैं समझाता हूँ, 1 मिनट। तो बट दिस प्रोविजन वाज सब्सिक्वेंटली डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है कि आर्टिकल 350 लगाने के पीछे प्रेसिडेंट यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यदि ये लगता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है और सेंटर में बीजेपी की है, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट तो फिर बायस्ड हो गई। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार को सस्पेंड कर दो और फिर री इलेक्शन करवा दो। इसीलिए इसको जुडिशियल रिव्यू के दायरे में दोबारा से लाया गया। ठीक है, बोमई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द फॉलोइंग प्रोपोजिशन ऑन इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। okay, so this is their this presidential proclamation imposing president's rule is subject to judicial review.
सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट मटेरियल, फैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, दस्तावेज होने चाहिए ये दिखाने के लिए कि हाँ वाकई ही कुछ गैर कानूनन हो रहा था. एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी स्ट्रक डाउन, गैर कानूनन डिक्लेयर किया जा सकता है प्रेसिडेंट ने अगर कोई एक्शन लिया है बाय द कोर्ट इफ इट इज़ बेस्ड ऑन इररेलेवेंट और एक्सट्रेनियस ग्राउंड्स और इफ इट वाज फाउंड टू बी मैलिफाइडे और परवर्स. क्लियर? Burden lies on the center to prove that relevant material exists to justify the imposition of president's rule. And court ने ये भी कहा, court cannot go into the correctness of the material or its adequacy, but it can see that whether it is relevant to the action. कोर्ट ये नहीं देखेगा कि मटेरियल जो है फेक है या करेक्ट है या नहीं. कोर्ट ये देखेगा कि क्या वो मटेरियल रेलिवेंट है, इज दैट मटेरियल रेलिवेंट विद द स्टेप ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 356, with the step of applying state emergency. Judiciary's power to restore the dismissed government. If the court holds that presidential proclamation to be unconstitutional and invalid, judiciary has the power to restore dismissed state government. उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा ही किया था. 2015 में मोदी जी ने बोला कि कांग्रेस मुक्त भारत है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनी थी, जानबूझ के वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया और बोले कि मैं तुम्हें पुराने दिन याद करवा रहा हूँ जैसे तुमने पहले किया था. कांग्रेस ने बोला ओ जस्ट शट अप. कांग्रेस चली गई कहाँ? उत्तराखंड हाई कोर्ट. उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बोला उतरो नीचे. बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने क्या किया था कि प्रेसिडेंट रूल लगा के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने की बात की गई थी, ठीक है. फिर दोबारा से कांग्रेस की सरकार को वहाँ पे रिस्टोर कर दिया गया. किसने रिस्टोर किया? जस्टिस जोसेफ कुरिया, ठीक है. जोसेफ कुरिया का नाम फिर बाद में आगे देखेंगे हम. जोसेफ कुरिया ने जब ऐसा किया तो जोसेफ कुरिया का जब नंबर आया सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने का, सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रमोशन हो रही थी उनकी, तो मोदी जी ने रोक दिया. बोले कि अच्छा ये वही जज है जिसने उत्तराखंड में हमारी सरकार बनने से रोक दिया और कांग्रेस मुक्त भारत का मेरा सपना चूर चूर कर दिया. तो इनका सपना चूर चूर करेंगे, इनको जज नहीं बनने देंगे. राइट राइट. Parliamentary approval. The state legislative assembly should be dissolved only after the parliament has approved the presidential proclamation. Until such approval is given, president can only suspend the assembly. नहीं, फिर जस्टिस जोसेफ कुरिया जो है बाद में प्रमोट हो गए, ठीक है, प्रमोशन डिले कर दिया था. यस, ऐसा हुआ था. In case the parliament fails to approve the proclamation, the assembly would get reactivated. In case parliament fails to approve the proclamation, assembly would get reactivated. तो पार्लियामेंट को 2 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट रूल जो लगाया है वो मनमाना कदम नहीं हो सकता, ठीक है. तो जैसे पढ़ाने दो, तुम्हें बड़ी नींद नहीं आ रही, रुक जाओ, ये टॉपिक 10 पॉइंट कंप्लीट करने दो. सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ Constitution. Hence, a state government pursuing anti-secular politics is liable to action under Article 356. Factual है, ठीक है. Question of state government losing the confidence of legislative assembly should be decided on floor. उत्तराखंड में ये किया गया था, गवर्नर ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट द मेजॉरिटी, ठीक है. तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बोला हु आर यू टू डिसाइड कि हुआ है कि नहीं, फ्लोर टेस्ट करवाया जाए. फ्लोर टेस्ट के चलते उसको रिस्टोर कर दिया. फ्लोर टेस्ट मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में चीफ मिनिस्टर जाएंगे और एमएलएज को बोलेंगे मुझे वोट दो. अगर एमएलएज ने नहीं वोट दिया, ट्रस्ट वोट में फेल हो गए, तब तो ठीक है. अगर मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज को उन पे ट्रस्ट नहीं है तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ेगा. लेकिन गवर्नर अपनी सब्जेक्टिव जजमेंट के चलते, इंडिविजुअल जजमेंट के चलते ये नहीं कह सकता कि चीफ मिनिस्टर ने बहुमत खो दिया है. Yes, it is a great festival for you guys and for us also, everyone. Happy Chhath Puja to everyone. Saket, to you also, Praveen. Anyone else from the great state of Bihar? Okay guys, so ये था, where a new political party assumes power at the center, it will not have the authority to dismiss ministries formed by other parties in the states. ठीक है. वेयर अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी एज्यूम्स पावर एट द सेंटर,
it will not have the authority to dismiss ministries. जैसे पहले हुआ था ना 1967 में, कांग्रेस को पहले की जनता पार्टी की सरकारें अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया. ये सब अब अलाउड नहीं है. Case of proper and improper use, ये it will not be proper on my part if I discuss this now. Okay, so this is all. Thank you guys. Thank you. Eastern UP also, okay. So happy Chhath Puja to everyone, right? And happy weekend to me. ठीक है. थैंक यू गाइज, बाय बाय. सो सैटरडे को ये सारा रिवाइज कर लेना. मैं एक पीडीएफ और शेयर करूँगा जुडिशरी वाला पीडीएफ पढ़ के आना क्लास में, ठीक है. मुंह उठा के मत आना ऐसे. और ज्योग्राफी के जो टीचर हैं उनके वीडियो के नीचे रेटिंग दे देना सो दैट वी गेट टू नो एज टू हाउ इज ही टीचिंग. अदरवाइज he has written mains with geography optional. He has written 5 times. Okay, he has been teaching at offline institutes when the market was open, and right now he is associated with so many other platforms, and he has been teaching since last 5 years, 3 years, right? ये सारा कुछ है. Okay guys, thank you, bye bye.